Hello everyone. Welcome to Nutrition Gyan Prabha platform. So this specific lecture regarding food processing definitely going to be very important for the coming examination of UGC NET Home Science and WB Set along with the syllabus and definitely this individual session is also relevant for the individual who are studying MSc in food and nutrition, clinical nutrition, dietetics, and applied nutrition, right? And also for the student from 11 and 12 um, standard also. So in this specific lecture, we are going to cover this individual's topics which are mentioned here. Firstly is germination, then your fermentation, blanching, clarification, pasteurization of milk. Clarification is also related to milk. Then homogenization of milk, and definitely the application of this processor in processes whatsoever we are going to cover in making new food items like healthy food options. Right. And the advantage and disadvantages of those individual food processing method are also going to be discussed. So, the first concept is germination. So, germination is basically a process by which seeds, right? Seeds are going to be sprout basically and begin to grow into plants. So, in food processing, germination enhances the nutritional quality of the food. So, nutritional quality, if you are, if we are trying to enhance, then this process is definitely important. So, these are kind of a very easy and home friendly, we can say, or we can easily utilize these processes in home. So, in that perspective, germination is a very useful method. So, what exactly the process here I have provided that you can follow for not only the examination purpose, but for example, you are trying to germinate some of the seeds. So it could be anything. So by following this individual process, we can do that, right? So whole grams, for example, Bengal gram, right? So you have अ, जो हिंदी में छोले बोले जाते हैं राइट तो वो भी आप कंसिडर अगर कर लो so that whole grams you have to do what you have to soak overnight and water should be drained away from the seeds and इसको आप एक मतलब लूजली वुवन कॉटन में भी बांध के रख दो तो भी ये अच्छे से हो जाएगा तो बेसिकली उसमें आपको थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रिंकल करते रहना होगा ट्वाइस और थ्राइस इन द डे in the whole day, right? In a whole day. So after a day or two, germination takes place. So green gram can be germinated into a shorter time in summer. So summer में green gram अगर आप लो, so वो shorter time span में हो जाता है. The germination process is faster than invented in if you are trying basically doing it in winter and for example in case of dry beans and dry peas. So winter अगर winter में आप कर रहे हो then it will be more faster. Okay. So next. So now what exactly the application? Why should we and why must we have to utilize this process? तो क्यों जर्मिनेशन डेफिनेटली इसका एक यूटिलाइजेशन एक नहीं बहुत सारे यूटिलाइजेशन है लेकिन व्हाई शुड वी मस्ट हैव टू यूटिलाइज दिस प्रोसेस उसको जानने के लिए ये स्लाइड इज दिस स्लाइड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट सो टॉक्सिन्स आर देयर in the pulses, for example, in case you are considering pulse, then toxins are there. And if we want to eliminate out that individual uh, toxins, so in that case, fermentation as well as germination are there to basically eliminate out those toxins. So this slide is related to fermentation, not germination. So here is a slide which is related to germination.
सो एडवांटेजेस क्या क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला थे, दैट व्हाई शुड वी मस्ट हैव टू यूटिलाइज दिस प्रोसेस in our regular daily diet, right? Food processing, this method are very easy. So not only for easiness, rather these are very scientifically proven beneficial methods. So that is why we should and we must have to utilize it. So first of all, the nutritional value, which is going to increase, right? So dormant enzymes which are present within the food, basically the seeds only, that will be activated and easily that food, basically the, for example, Bengal gram. So that will be more easily digested whenever you are just germinating it, other than rather than the normal one, right? If you are germinating it, then जो digestibility होगा, processing within the body after eating that individual food items, तो वो इजी होगा. सो बॉडी के लिए इजी रहता है अगर आप जर्मिनेटेड स्प्राउट्स बीन्स ले लो rather than normal beans, right? Or boiled beans. So that is why germination is definitely a very important and a very good process. So in the perspective of food processing, and definitely for the biochemical aspect also, the physiological perspective also, so that is definitely that is why germination is definitely beneficial. So it increases vitamin C and B complex content. So this question has been asked in UGC NET JRF examination, right? B complex, and ये लिख लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा होगा कि बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, both these vitamins are definitely going to increase whenever you are doing, or you are applying germination method in case of seeds, right? So vitamin C synthesized during germination, और बेसिकली व्हेन डोरमेंट एंजाइम आर एक्टिवेटेड, तो डोरमेंट जो एंजाइम होता है वो भी एक्टिवेटेड हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई बेसिकली जर्मिनेशन को यूटिलाइज किया जाता है. तो पल्सेस में भी जर्मिनेशन किया जाता है, एंड द बेसिक पर्पस फॉर दिस ओनली कि आप जो भी एंजाइम्स इनएक्टिवेटेड मतलब ऑलरेडी था उसको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ दोज एंजाइम्स food definitely going to be more easily digested by the human body. Sprouting decreases cooking time. तो yes, this is also a very good aspect. अगर आप sprouting मतलब germinate कर लेते हो कोई भी सीड और pulses हो गया, तो in that case जो कुकिंग टाइम रहेगा वो डिक्रीज होगा. सो द कुकिंग टाइम विल गोइंग टू decrease whenever you are sprouting the beans or the Bengal grams or the peas, whatever you are taking, right? So next is dehusking is easier. Definitely dehusking will be easier whenever you are germinating the seeds. So germination metabolizes oligosaccharides and hence do not produce gas or फ्लैटुलेंस. सो अगर जर्मिनेशन नहीं हुआ, मतलब नहीं कर रहे हो आप, तो इन दैट केस पल्सेस एंड इन केस ऑफ योर सीड्स, मतलब जो भी आप कुक कर रहे हो, अगर आप जर्मिनेट कर लो अच्छे से, तो उसमें क्या रहेगा, वो अच्छे से डाइजेशन, मतलब इन केस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स मींस द सैकेराइड्स व्हिच आर हैविंग मोर देन more than two, your disaccharide is having two carbon, and more than two carbon are definitely considered in trisaccharide, tetrasaccharide. So वो आपके oligosaccharides में भी आता है. तो ये जो डाइजेशन का एस्पेक्ट है उसमें ही आएगा कि अगर oligosaccharides ऑलरेडी प्रॉपरली ड्यूरिंग जर्मिनेशन मेटाबोलाइज हो जाता है, तो वो डाइजेशन करने में आफ्टर कंज्यूमिंग, मतलब आप अगर आप पका के खा रहे हो तो उसके बाद डाइजेशन करने में हेल्प होगा, राइट? तो दैट इज द साइंटिफिक एस्पेक्ट बिहाइंड द जर्मिनेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग योर फर्मेंटेशन. सो फर्मेंटेशन में जाने से पहले आपको ये तो जानना होगा कि फर्मेंटेशन होता क्या है, राइट? सो in both of this case, like germination and fermentation, both the cases, basically this process is reduce anti-nutritional factor like phytates. ठीक है, फाइटेट्स हो गया, कोई भी ये जो पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, क्वाइट्रोजेन, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, लेथाइरोजेंस,
हीमाग्लूटिन, तो ये टॉक्सिन्स पाल्सेस में मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है, राइट. सो सोलानिन इन केस ऑफ सोयाबीन, solanin, solanin is, saponin, which is present in soybean. So solanine is a toxin which is usually present in potato. So no, that is not related to this individual aspect, but yes, so saponin which is present in the pulse, which is soybean. So वो भी आप क्या करोगे, सोयाबीन को भी फर्मेंटेशन के थ्रू फर्मेंटेशन, और जर्मिनेशन नहीं होगा, फर्मेंटेशन होगा इन केस ऑफ सोयाबीन. तो by fermenting the soybean, like TMF, and there are like other examples of food options, which are definitely I am going to give you in the coming slides, in the coming as like aspect only. So yes, तो saponin हो गया जो सोयाबीन में प्रेजेंट रहता है, उसको भी एज अ टॉक्सिन कंसिडर किया जाता है, एंड फर्मेंटेशन के माध्यम से हम चाहे तो उसको एलिमिनेट कर पाएंगे. एंड डेफिनेटली, सो फर्मेंटेशन क्या होता है वो हम थोड़ा जान लेंगे. फर्मेंटेशन इज अ नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस in which microorganism like yeast, bacteria or mold going to convert carbohydrate. So what? Carbohydrate, right? So carbohydrate is going to be converted into alcohol. ये क्वेश्चन एक बार सेट में पूछा गया था, ये लिख लो आप, कि अगर पूछा जाए कि फर्मेंटेशन का जो की एस्पेक्ट होगा, मतलब जो की चेंजेस होता है फूड में, सो वो क्या होता है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको क्या करना होगा, आपको ये अगर ऑप्शन में है कि कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड, सॉरी, और नॉट और रेदर प्लस, मतलब अल्कोहल के साथ थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है. तो ये अगर ऑप्शन में है तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल प्लस ऑर्गेनिक एसिड. सो ये होता है विदाउट ऑक्सीजन. सो दिस इज अ एनएरोबिक प्रोसेस. I think I am very clear to you, right? So this process is used to preserve food, enhance its flavor, texture, and improve the for improvement of the nutritional value of the food, right? So benefits of fermentation. So as we have already discussed, so this process not only preserve food but also enhance flavor and nutrition, राइट. सो एग्जाम्पल्स तो हम डेफिनेटली जानेंगे, बट बेनिफिट्स में क्या होगा, ये प्रिजर्व कर, डेफिनेटली फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, ये न्यूट्रिशन एनहेंस करता है. तो इन डिटेल अगर हम बोले तो द प्रोसेस कैन इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स which synthesized during this process like B vitamins and C vitamins. And it also break down the anti-nutrients such as phytic acid. So phytates and other anti-nutrients. So these are not nutrient, rather they hinder the function of nutrients. So they are present within the food only. So we have to do what? So anti-nutrient के बारे में अगर हम बोले तो ये कोई they are not they do not have any good work to do within the body. मतलब good work मतलब क्या बोलेंगे हम, कि कोई as such कोई benefit नहीं है, ठीक है. rather they hinder they just try to stop the work of other nutrients within the body, right. So जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उसको तो हमको क्या करना होगा, हम लोग पे इसीलिए ये जो प्रोसेसेस है वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इन आवर होम ऑल्सो. तो इसी वजह से फर्मेंटेशन इज अ वेरी रेगुलरली यूटिलाइज प्रोसेस. अगर आप जापान कोरिया ले लो तो वो लोग मैक्सिमम फूड्स लाइक किमची हो गया, एंड देयर आर अदर मेनी, टेमेफ हो गया, तो ये सब भी फर्मेंटेड किया हुआ फूड ऑप्शंस है. टोफू हो गया. तो यस,
अगर आप साउथ इंडियन फूड ऑप्शंस में ले लो तो इडली डोसा, तो ये ऑप्शंस भी आपको डेफिनेटली आप फर्मेंटेशन में ही कंसिडर करोगे। तो जब जब आप फर्मेंटेड फूड खा रहे हो, आपको ये याद रखना होगा कि दिस फूड ऑप्शंस आर rather more and very clearly more beneficial food options and more healthy food option in comparison to like as such आपका पकोड़ा हो गया, कोई जलेबी हो गया, कोई मतलब और कोई फ्राइड अदर फूड्स हो गया, तो लाइक एनिमल ऑप्शंस हो या वेजिटेबल ऑप्शंस हो, इससे बेहतर ये ऑप्शंस होते हैं जिसको आप लाइक फर्मेंटेशन ले लो, जर्मिनेटेड फूड ऑप्शंस ले लो, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स इनमें मिल प्रेजेंट होता है वो अच्छे से बॉडी बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन में अच्छे से मतलब बॉडी यूटिलाइज कर पाता है उसको अच्छे से। तो इसीलिए these processes are utilized basically discussed in this session because from these classes sorry from these topics or rather I would say ऑलरेडी यूजीसी ने जेआरएफ में भी क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है 2-3 बार। लाइक जैसे मैंने बोला कि फर्मेंटेशन में चेंज क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल प्लस आपका ऑर्गेनिक एसिड। जर्मिनेशन में कौन सा विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होता है ये पूछा गया था एक बार। तो ये इसीलिए जो मैं बेसिकली अलग से आपको लिख लेने के लिए बोल रही हूँ, डू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो नेक्स्ट इज इम्प्रूव डाइजेशन एंड गट हेल्थ। So fermented food may contain beneficial live microorganism also. Yes, तो fermented food में मतलब आप अगर बोल लो कि आपका जो प्रोबायोटिक हो गया, तो ये जो लाइफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है लाइक यस योर प्रोबायोटिक, तो वो भी आपको मिलेगा फ्रॉम फर्मेंटेड फूड ऑप्शन। सो आप भी अगर देख लो तो अच्छे से लाइक फूड ऑप्शन में अगर मैं बोलूँ तो योगर्ट, तो योगार्ट में क्या होता है, योगार्ट में आपका प्रेजेंट होता है डेफिनेटली आपका योगार्ट में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, लाइफ बैक्टीरिया, लाइफ गुड बैक्टीरिया मिलेगा जो आपको गाट हेल्थ, आपका जो गाट जो हेल्थ है गाट का। तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड फंक्शनल फूड एंड आप प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स इन डिटेल। तो डेफिनेटली आपका जो लाइफ बैक्टीरिया रहता है इसमें योगर्ट में, तो योगर्ट डेफिनेटली एक फर्मेंटेड फूड ऑप्शन है। एंड अगर आप योगर्ट को पकड़ लो तो इसमें जो लाइव बैक्टीरियाज है वो आपका गट हेल्थ में डेफिनेटली गट हेल्थ को सस्टेन करने में अच्छे से हेल्प करेगा। तो इसीलिए these food options are very 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 healthy, and that is why these individual food processing methods are regularly utilized for whosoever who are trying to be healthy for in daily life in everyday life। तो ये अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी आपका फॉलो कर लो ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, unique flavor and texture. So yes, fermentation develops a wide diversity in the flavor, aroma and texture also, which are not usually present in original raw food. Yes, this is definitely true. अगर आप इडली ले लो, डोसा ले लो, किमची ले लो, योगर्ट ले लो, तो इसमें जो चेंजेस आने के बाद एक अच्छा जो भी अरोमा हो गया, फ्लेवर हो गया, जो चेंजेस आता है ना, वो तो रॉ फूड में नहीं होता। तो इसके लिए भी फर्मेंटेशन इज अ वेरी good option to just make or import variety in your daily life, your daily regular meals, right? So, yes, now we are going to discuss the option like which are fermented food options. So, here are the foods, and please do consider this slide as a very important slide for UGC NET JRF I am telling, and for WB set. ठीक है, आप लोगों के लिए फॉर एग्जामिनेशन पर्पस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। अच्छे से मतलब अगर आप कम अभी तक कॉम्प्रिहेंड कर पाए हो, समझ पाए हो कॉन्सेप्ट को, तो ऐसा आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी दिस इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक एस्पेक्ट टू मेक जस्ट रटोफाई एंड जस्ट रिमेम्बरेंस फॉर रिमेम्बरेंस, बट यस मैं डेफिनेटली बोलूंगी ये वाइन वाला जो ऑप्शन है, लाइक ग्रेप से बनता है वाइन, इसमें लगता है यीस्ट, ठीक है। देन आपका हो गया ये ये टेमएफ हो गया, सोयाबीन से बनता है।
ठीक है। एंड नेक्स्ट योगर्ट मिल्क से बनता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूटिलाइज होता है, ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो ये जो ऑप्शंस है ना, without any without even thinking for the second time, I would suggest you to everyone whosoever just seeing the video lecture. So do, if you are like you have you are just preparing for your UGC NET JRF or WB set, MP set. So from any state you are preparing for state eligibility test or national eligibility test in this individual discipline, do try to remember each and every option with the food principal ingredients, and if possible the key microorganism also, as we do know that without microorganism fermentation is not possible, right? क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म ही है जो क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल प्लस ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। So that is the basic I would say that this is a very important suggestion from my side as educated, that do try to remember this slide, the whole slide, and individually wine is important, beer is important, yogurt and cheese are definitely important, then your fermented sausage, ये अभी तक नहीं आया है फिर भी अच्छे से याद रख लेना। टेमेफ हो गया, सोया सॉस हो गया, पिकल्ड क्यूक्यूम्बर, बटर मिल्क, केफिर, विनीगर इज ऑल्सो, ठीक है, ग्रेप से बनता है, एसिडोबैक्टर, तो ये ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये डेफिनेटली दीज ऑप्शंस और दीज पॉइंट्स ट्राई टू रिमेम्बर firmly. I would suggest you for the coming examination, and do try to remember also, right? ये आप अच्छे से जब भी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को आप अगर आप चाहे तो ये जो नोट्स है ना, ये प्रॉपरली दिया हुआ है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। तो ब्लैक बीन हो गया, काउपी हो गया, लेंटिल हो गया, ये सभी चीजें फर्मेंटेड फूड में लगता है, ठीक है। तो ये अगर एक बार पूछा गया था कि कौन सा पल्सेस है जो यूजुअली फर्मेंटेशन में यूटिलाइज होता है, अगर आपने 10 years सॉल्व किया होगा तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको मिला होगा यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, एंड फॉर डब्ल्यूबी सेट एंड अदर सेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो ये जो ऑप्शंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेयरी प्रोडक्ट एक बार आया था कि फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स नेम्स आर लाइक दिस एंड यू हैव टू चेक मार्क द राइट ऑप्शन। तो श्रीखंड हो गया, बटर मिल्क हो गया, एसिडोफिलस मिल्क, केफिर, काउ मिस एंड चीज, शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो यस, दिस ऑप्शन आर इम्पोर्टेंट। की पॉइंट्स फर्मेंटेशन ऑफ पल्सेस, तो ये एक बार पूछा गया था, शायद एक बार पूछा गया था, एंड थोड़ा टफ हो जाता है अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होता। तो माइक्रोबियल एंजाइम ब्रेकडाउन इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन व्हेनेवर फर्मेंटेशन ऑफ पल्सेस हो रहा है। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, मैंने बोला ही होगा ये चीजें। तो ये जो चीजें हो रहा है ना, तो ये एडवांटेजेस है, तो एडवांटेजेस भी अलग से आप याद रख लेना कि होता मतलब व्हाई शुड वी, बेसिकली व्हाई वी आर यूटिलाइजिंग फर्मेंटेशन, राइट? सो दैट इज दिस आर द की पॉइंट्स। टेमेफ होता क्या है, सोया सॉस होता क्या है, ये सब आपको किससे बनता है, मेजरली सोयाबीन से बनता है सोया सॉस। ये एक जापानीज कुकिंग मेथड में यूटिलाइज किया जा, मतलब यूटिलाइज यूजुअली किया जाता है, एंड अभी हम लोग भी सीजनिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं, राइट? तो फॉर सूप बेस रामेन, सो फॉर दिस आइटम्स दिस आर दिस सोया सॉस usually utilized. Tempe or tempeh. So it is a traditional Indonesian food items which made up by fermenting cooked soybean. So अगर आप सोयाबीन को कुक कर रहे हो उसके बाद फर्मेंट कर रहे हो, तो उसके मतलब इन दैट सेंस इडली मतलब सॉरी, सो टेमेफ इज इन दैट सेंस इज मेजरली ईटन इन इंडोनेशिया। अब आपको डेफिनेटली जो लोग पसंद करते हो उन लोगों को पता होगा कि कैसे बनता है, बट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस यू हैव टू रिमेम्बर एंड लर्न, राइट? टोफू भी एक ऑप्शन है, टोफू वो भी सोयाबीन से बनता है, ये भी याद रख लेना। So for definitely advantages हम लोगों को we already have discussed.
still I would rather try will love to mention that definitely the digestibility of pulses and seeds will definitely going to increase, flavor enhance होगा, डाइट में वैरायटी आएगा, एंड लेवल ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, वो भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, एंड इंक्रीज होता है, इंक्रीज भी होता है, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, so both these option are important, so B and C whenever वेजिटेबल ऑप्शंस में कोई भी मतलब इंक्रीज किया जाने वाला विटामिन को बोला जाएगा तो बी एंड सी ही यूजुअली होता है। नेक्स्ट ब्लांचिंग, ब्लांचिंग इज अ कुकिंग प्रोसेस। तो इसमें होता क्या है, ये एक 3 स्टेज प्रोसेस है, प्री हीटिंग, ब्लांचिंग एंड कुकिंग। सो ये एक हीट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये मतलब प्रोसेसिंग एज सच इसको यूटिलाइज कब किया जाता है, तो ब्लांचिंग इज इन्वॉल्व इन ब्रीफली बॉइलिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंड देन क्विकली कूलिंग देम इन अ कोल्ड वाटर, ठीक है। तो यही चीज को यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट आपको क्या करना होगा, डिप करना होगा वेजिटेबल्स को वाटर में, बॉइलिंग वाटर में फॉर 2 to 3 minutes। सो दिस टाइमिंग इज स्पेसिफिक, दिस टाइमिंग इज स्पेसिफिक, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ब्लांचिंग से क्वेश्चन आता है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट जेआरएफ एंड अदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑल्सो। सो यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें होता क्या है, ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है कि बॉइलिंग में क्या एंजाइम को किल किया जाता है या मतलब इनएक्टिव किया जाता है। तो इसमें इनएक्टिवेशन इज एस्पेक्ट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं किया जाता है, ओनली इनएक्टिव किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। इसमें भी सेम एज तरीके से थ्रू पिक्चर समझाया जा चुका, मतलब अगर आप देखो तो मतलब व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस लाइक बॉइलिंग एंड देन कूलिंग फॉर सम टाइम, सो यही चीज आपको दिखाया जाए मतलब दिखेगा इसमें। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। सो ब्लांचिंग इज अ प्रोसेस, जैसे मैंने बोला कि ये प्री ट्रीटमेंट है एक food not only in home, also for food industry. It's a very it is a very kind of a process which make the food rather available for a longer period of time, क्योंकि इसमें जो enzymes होते हैं फूड के अंदर, तो अगर वो inactive नहीं हुआ तो सेल्फ मतलब अ, वो ज्यादा से मतलब बहुत ही कम समय में सड़ जाता है, जो भी वेजिटेबल्स आपने रखा होगा फ्रिज में, अगर आपने क्या नहीं किया, अगर आपने ब्लांचिंग नहीं किया होगा तो, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू इनएक्टिवेट द एंजाइम। अगर आपको पूछा जाए कि प्राइमरी मतलब एम क्या है, व्हाई बेसिकली वी आर यूटिलाइजिंग दिस प्रोसेस, तो प्राइमरी एम यही होगा कि इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज। ये नाम आप लोगों को याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, polygallactourinase, chlorophyllus, catalase. Catalase is very very important. So catalase, peroxidase very important. So yes. So these are going. मतलब these must have to be inactivated, these enzymes, because these are most thermal resistant enzymes of concern. So these enzymes are responsible for the loss of flavor, color, texture, nutritional qualities also during product storage. तो नॉट ओनली न्यूट्रिशनल क्वालिटी, एक बार पूछा भी गया था, आप लोग कंफ्यूज मत होना। यस, कलर कलर भी नहीं रहता, ठीक से सस्टेन नहीं करता, फ्लेवर भी नहीं सस्टेन करता, टेक्सचर भी नहीं सस्टेन करता है अगर आपने ब्लांचिंग नहीं किया होगा तो। अगर किया होगा तो कलर भी वैसे का वैसा ही रहेगा जैसे आपने मतलब जब आप लाए होगे फ्रॉम, इवन इनहेंस होता है कलर। देखो आप अनब्लांच्ड जो है उससे ब्लांच्ड का सैचुरेशन मतलब इंक्रीज हो गया है अगर आप अच्छे से देखो तो, ठीक है। सो यस, ये देखो एंड ये देखो। सो नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, ये आप लोगों ने सुना ही होगा अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से हो तो, एंड फॉर एनी अदर डिसिप्लिन आल्सो लाइक एप्लीकेशन न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो पास्चुराइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर मास्टर्स आल्सो, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो टेम्परेचर बोला गया है वो आपको याद रखना होगा।
क्लैरिफिकेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस जिसमें मेनली डास्ट पार्टिकल को डार्ट हो गया, डास्ट हो गया, फ्लीथ हो गया एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो गया, तो उसको रिमूव करने के लिए प्रोसेसिंग किया जाता है क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट इज योर पास्चराइजेशन। इसमें होल्डिंग बैच सिस्टम में आपको 65 से 65 डिग्री सेल्सियस को फॉलो किया जाता है फॉर 30 मिनट्स। इसको होल्डिंग बैच सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट HTST यूजुअली शॉर्ट फॉर्म यूटिलाइज्ड होता है एग्जामिनेशन में। तो HTST का फुल फॉर्म हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है। सो दिस इज यू हैव टू फॉर दिस केस ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर द टेम्परेचर विच इज 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम, तो इसमें आपको क्या करना होता है, फॉर 1 सेकेंड 149.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। सो पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आपको क्या किया जाता है, एक प्रॉपर फ्लो चार्ट इसमें दिया होगा। तो यही सेम प्रोसेस में सभी मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर प्रोसेस जिसको यूटिलाइज करके पास्चराइजेशन किया जाता है। सो पास्चराइज मिल्क आर बेसिकली वी मस्ट हैव टू यूटिलाइज बिकॉज उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो किल मतलब वी किल दोज इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और pathogen which are responsible for different diseases also like Q fever हो गया, ठीक है। एंड तो इसीलिए पास्चराइज्ड मिल्क ही खरीदना चाहिए एंड उसको ही कंज्यूम करना चाहिए। ये डेफिनेटली आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। ये हेल्दी ऑप्शन है। पास्चराइज्ड हो तभी वो मिल्क मतलब कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो there are some reason also like pathogens are present, right? And diseases हो सकता है, तो इसीलिए एंड नॉट ओनली दैट पास्चराइज्ड मिल्क आप ज्यादा देर तक रख सकते हो, मतलब 2-3 दिन तो इजीली उसमें पैकेट में टाइम भी बोला जाता है। कीपिंग क्वालिटी अच्छा होता है, ठीक है, इसलिए ज्यादा देर तक रखा जाता है, स्पॉयलेज नहीं होता, सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वुड इंटरफेयर विद द एक्टिविटीज ऑफ डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म, right? So that is why pasteurization is a very good process, and for to make the milk sustainably, basically to store for a very longer period of time. And next process is homogenization. तो ये भी एक प्रोसेसिंग है जो मिल्क में ही यूटिलाइज किया जाता है। तो होमोजेनाइजेशन आपका जो है वो है एक मैकेनिकल प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन द फैट ग्लोब्यूल्स इन द milk, okay, and that will be distributed like evenly within the milk। तो जो फैट है मिल्क में उसको अच्छे से मतलब ब्रेक डाउन करके अच्छे से एक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सिमिलर मतलब पैरिटी रहना चाहता है, मेक श्योर किया जाता है कि पैरिटी रहे, पैरिटी इन विच पर्सपेक्टिव द फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब जो फैट का जो ग्लोब्यूल्स होता है उसको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे साइज में। तो सो ये क्यों हम मतलब इसका पर्पस क्या है, सो दिस प्रिवेंट्स क्रीम सेपरेशन एंड गिव्स मिल्क अ स्मूथ यूनिफॉर्म टेक्सचर। सो टेक्सचर यूनिफॉर्म हो जाता है, मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं होता टेक्सचर के बेसिस पे। ये डेफिनेटली क्रीम का जो लेयर है वो फॉर्मेशन के बेसिस पे जो होगा वो एक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। It improves the consistency, taste, and appeal also. So that is also a that these aspects are also considered that जो भी उसका जो फ्लेवर होगा एंड टेस्ट होगा वो भी इंक्रीज होता है। सो मेरिट्स इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्रीम लेयर, अलग से क्रीम लेयर नहीं। आप अगर देखोगे तो पास्चराइज मिल्क में पास्चराइज मिल्क के क्या मतलब इन केस ऑफ पास्चराइज्ड मिल्क क्रीम लेयर एज सच नहीं क्रिएट होता, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करके होमोजेनाइज्ड मिल्क में सॉरी पास्चराइज्ड प्लस होमोजेनाइज्ड होना चाहिए तब जाके ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन किया जाता है पहले ही इन केस ऑफ होमोजेनाइजेशन। सो थिक बॉडी एंड रिच अपील, प्रोड्यूस सॉफ्ट कार्ड इजीली डाइजेस्टेबल, यस, तो डाइजेशन में इजीनेस आएगा, सो वो भी एक डेफिनेटली गुड थिंग। सो नेक्स्ट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस, तो होमोजेनाइज अगर करना होगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगा, ये तो सही बात है। फैट फ्रॉम रिटर्न होमोजेनाइज मिल्क इज डिफिकल्ट टू सैल्वेज, तो एक बार ब्रेक डाउन हो गया तो फिर से तो नहीं आपको आपका तो
क्रीम लेयर नहीं बन पाएगा, तो वो तो सही है। अगर चाहोगे भी तो वो नहीं होगा। May produce rancidity if temperature is not kept adequately high. तो होमोजेनाइजेशन के मामले में टेम्परेचर को हाई रखना जरूरी है, नहीं तो इट कैन प्रोड्यूस मतलब इट मे प्रोड्यूस रैंसिडिटी। रैंसिड होगा तो वो कंज्यूमेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए so that was the last slide of this session, and I would like to say thank you to every one of you whosoever are basically seeing this individual session. So food processing is not just about making food last longer, it's about making it safer, more nutritious, and more convenient, right? While being aware of the potential downside, also, like you have to also understand that these methods help us make informed choices as nutrition professionals and consumers. And so, if you found this lecture useful, please do subscribe to the channel for regular educational videos on nutrition, food science, and dietetics. And there are others subject options also related to your UGC NET home science, like clothing, apparel, textile. Like the full syllabus is definitely we are trying to cover through the videos also. Through the video lectures also, so definitely subscribe this into YouTube channel, and also do subscribe the Telegram channel for regular free notes and mock test also, right? So thank you in advance, and definitely we are going to um, meet again in the next session. Thank you, and thank you very much, and definitely subscribe the channel. Thank you.